Hello my dear student. Today's topic is finding unknown constant coefficients. Finding unknown constant coefficient. हमने पिछली क्लास में देखा कि how can find the discriminant of the any quadratic equations and how can find the nature of the quadratic equations. So when the discriminant equal to 0, then their both the roots are real and equal. When the discriminant is greater than 0 means when the discriminant is positive, then both the roots are real and distinct. When the discriminant is less than 0 means discriminant is negative number, then both the roots are distinct and imaginary. But in this class today we see the how we can find the unknown coefficient of a quadratic equations. तो हम कैसे निकालेंगे अननोन कांस्टेंट कोएफिशिएंट का वैल्यू. तो वी सी द एग्जांपल नंबर 23. एग्जांपल नंबर 23. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k is unknown constant in the quadratic equation 9x² plus 3kx plus 4 equal to 0 given that roots of the quadratic equations are equal. So how can find the value of unknown constant coefficient? Here constant coefficient is k. Solve. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ से? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हमको k का वैल्यू निकालना है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0. इसमें से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से k का वैल्यू क्या होगा? व्हेन गिवन दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल. अब यहाँ पर बोला है कि given that the roots of the quadratic equations are equal means ये हमको यहाँ से हिंट मिल रहा है. given roots of the quadratic equation are equal. It means रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल. इट मीन्स क्या होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कब इक्वल होगा? कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तभी उसका रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल होगा. सो फर्स्ट वी कंपेयर दिस ऑन comparing 9x² plus 3kx plus 4 equal to 0 with ax² plus bx plus c equal to 0. then what is the value of a? a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? a equal to 9 and b equal to 3k, नॉट 3 ओनली 3k होगा क्योंकि x यहाँ से एंड c इक्वल टू 4. देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac. अब इसमें वैल्यू पुट करो. b² कितना हो गया यहाँ से? 3k² माइनस 4. a कितना दिया यहाँ से? 9 इंटू सी 4. बट डिस्क्रिमिनेंट कितना दिया है यहाँ पर? 0. देन अगेन इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू 3k² मीन्स 9k² माइनस 4 जा 16, 16 9 जा 100, 16 9 जा 144. एंड इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू 9k² तो क्या हो जाएगा? वी ट्रांसपोज माइनस 142 टू लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा 0 प्लस 144 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 9k². देन वी राइट हियर इम्प्लाइज दैट 9k² इक्वल टू 144. देन अगेन इम्प्लाइज दैट वी ट्रांसपोज दिस 9 टू राइट हैंड साइड k² इक्वल टू ये हो जाएगा 144 अपॉन
9. 144 upon 9 means then 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, then 9 1 जा 9, कितना बचे यहाँ पर 5, 9 6 जा 54, then implies that k square equal to 16. So the value of k equal to क्या होगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16, then implies that k equal to plus minus 4. So the value of k is plus minus 4. ये तो k का वैल्यू प्लस भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है. So we see the next example, next question. Or question number 1, solve the following equation with the help of formula. With the help of formula means, with the help of formula method means Sridharacharya formula. First, 9x square plus 7x minus 2 equal to 0. Second, 2x square minus 2 square root 6x plus 3 equal to 0. We solve the first question. Solve first on comparing 9x square plus 7x minus 2 with standard coordinate equation ax square plus bx plus c equal to 0. Then we get a equal to क्या हो जाएगा यहाँ से 9, b equal to 7 and c equal to minus 2. By formula method, x equal to minus b plus minus root square root b square minus 4ac upon 2a. On putting the value of a, b and c in this formula, x equal to minus b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है यहाँ से 9, c का वैल्यू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर कितना है यहाँ पर 9. देन इम्प्लाइज दैट x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 9 जा 36 2 जा 72 अपॉन 2 9 जा 18 इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 2 11 कैरी ओवर 1 4 प्लस 7 11 11 प्लस 2 11 प्लस 1 12 अपॉन 18. x equal to minus 7 plus minus square root 121 means 11 upon 18. 11 upon 18. So here plus minus 11 upon 18 आ रहा है. So on taking positive sign, तो on taking positive sign means x equal कितना हो जाएगा माइनस 7, इसमें प्लस लेंगे प्लस 11 अपॉन 18, देन इक्वल टू माइनस 7 प्लस 11 4 अपॉन 18. सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18. सो x इक्वल टू 2 अपॉन 9. नेक्स्ट वन ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, हम नेगेटिव साइन लेते क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू माइनस 7 और ये माइनस 11 अपॉन 18. देन इम्प्लाइज दैट माइनस 7 माइनस 11 माइनस 18 अपॉन 18. सो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 1. 18 1 जा 81 81 18 and 18 1 जा 18. So x equal to minus 1. So the x equal 2 upon 9 और minus 1 are two roots
of quadratic equation 9x square plus 7x minus 2 इक्वल टू 0। तो बाई सीधे चारों फॉर्मूला बहुत इजी है। यहाँ पर -7 प्लस -11/18 आ रहा है, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स, सो द x इक्वल टू 2/9 and -1 आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x minus 2 इक्वल टू 0। वैसे द सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी वैसे सेम बनेगा ऑन कंपेयरिंग 2x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 with standard quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। then a equal to 2 हो गया, b equal to -2 square root 6 and c equal to 3 by फॉर्मूला मेथड। x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देन पुट द वैल्यू ऑफ a b and c इन दिस फॉर्मूला। -b तो माइनस तो रहेगा, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर -2 स्क्वायर रूट 6। अब ये थोड़ा ये ध्यान देना है, माइनस ऑलरेडी है जबकि b का वैल्यू -2 रूट 6 है, उसको हमको ध्यान देना है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 2 एंड सी 3 अपॉन 2 इंटू ए कितना है यहाँ से here 2। x इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू माइनस टू माइनस प्लस, तो 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस -2 स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर किए हैं -2 स्क्वायर रूट 6 इंटू -2 स्क्वायर रूट 6, तो माइनस तो प्लस हुआ, 2 2 जो 4 and square root 6 into square root 6 is square root 36 and the square root 36 equal to 6। so इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 6 जा 24 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। then x equal to 2 square root 6 plus minus 24 minus 24 0 upon 4 equal to 2 root 6 upon 4। तो यहाँ पर ये जाएगा 2 root 6 upon 4 एंड हम इसको ले सकते हैं प्लस माइनस 0। तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 root 6 upon 4 implies that 2 1 जा 2 2 2 जा 4 equal to square root 6 upon 2। अब ये बोलेंगे सर कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2 आया, जबकि इसका 2 वैल्यू आना चाहिए था, ये प्लस माइनस 0 हो गया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू हमको मिल रहा है यहाँ पर 6 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो रहा है। सो द when the discriminant equal to 0 then क्या होता है, what is the nature of the quadratic equation? when the discriminant equal to 0 then the nature of the quadratic equations are both the roots are equal and real। तो value of x क्या होगा स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2। thus x equal to स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2 is a root of given quadratic
equation. Thus x equal to 6/2 is a root of a given quadratic equation. We see the next topic in next class. Thank you. Have a nice day.